Hi everyone, my name is Professor B.R.TIWARI and I am with you to teach Arithmetico Geometric Progression and the series. So name of this topic is AGP and AGS. Now the question is, what is AGP? To understand AGP, can you tell me what is mean by AP? Yes, AP. So the common difference is constant. So for example, I'm taking one AP like 2, 4, 6, 8, 10. The numbers are in AP. Okay, AP. Now, can you tell me what is GP? So the ratio is constant. So, for example, I just took 1, 3, then 3 3 ja 9, 9 3 ja 27, 27 3 ja 81. So I just took GP. Okay. So AP with the common difference is 2, and the GP with the ratio common ratio equal to 3. Now what will happen if I'm going to multiply first term with first term? So it will look like 2 1 ja 2. Then the second term is second term with second term, 4 3 ja 6 9 ja 6 9 ja. Okay, and the 827 ja 827 ja, then 10 into 81, 10 into 81. So we can say that this is the combination of AP and GP, where the first term of the progression are in AP and the second term of the progressions are in GP. Therefore the progression is called as AP plus GP, that is AGP, arithmetico geometric progressions. Understood? So what is mean by arithmetico geometric progressions? The very first term will be in AP and the second term will be in GP. Okay. If I'm going to add all the, all the numbers, if I'm going to add all the numbers, 2 1 ja 2 plus 4 3 ja plus 6 9 ja plus 8 into 27, if I'm going to add all the numbers, what I will get is the series which is known as AP-GP ka series. So that is AGS. So now you understood what is the difference between arithmetico geometric progression and arithmetico geometric series. Progressions are written like this, and series you'll have to put the plus in between. Okay, so now you understood what is mean by AP, what is mean by GP, and what is mean by AGP, and what is mean by AGS. And definitely you can classify the AP, GP, AGP, and AGS. Is that clear to everybody? Here the first term will be in AP and the second term will be in GP of the series. Now the question is arising, we know for AP, we know the formula of nth term. What is formula of nth term for AP? So A plus n minus 1 into D. Okay. What is the sum of the n terms? So that is n by 2 times of 2A plus n minus 1 into D. N minus 1 into D. And for GP, what is the formula of nth term? Tn. So that is A r raised to n minus 1. And what is the formula of Sn? That is A r raised to n minus 1 upon r minus 1. The formula is valid if r is more than 1. R is more than 1. And there is one more formula, 1 minus r raised to n upon 1 minus r, when r lies between minus 1 and plus 1. Clear to everybody? Now for the GP, we know the S infinity, the sum of infinite terms, so where you will have to put replace n by infinity, since r is between minus 1 and plus 1. So if I'm taking a number between minus 1 and plus 1, my 0.5, say 0.5 raised to 1 is 0.5. 0.5 ka square is what? That is 0.25. So you can say that the 50 is bigger than 25. Okay, 0.25, that is 0.5 ka cube is 0.125. So now you can say that this 500 is bigger than 250, and that is bigger than 0.125. Okay, so if I'll do that powers, okay,
if I'm enlarging the powers till infinity, so the number, if I have a number between, this number lying between -1 and +1, so the infinite power will make it almost 0. Clear? So if we'll put r and n is tending towards infinity, the formula of S infinity for GP is a upon 1 minus r. While applying the formula, this is the compulsion. You'll have to check this. If r is more than 1, you can't apply the formula of S infinity. In that case, the in some of the infinite terms will be infinite. Clear to everybody? Okay, so now what should be the formula of AGP? What should be the formula of AGP? ठीक है, so उसको करने के लिए we will do that 3 procedure. Okay, so the very first step is identify AGP or AGS. AGP or AGS. From series, you'll have to identify whether the given series is the AGS. Okay, where the first term of the series will be in AP. Okay, will be in AP, and the second term will be in GP. So first of all, identify the series, then multiplying both side of equation 1, say this is the equation 1, multiplying both side of equation 1 by common ratio of GP, ratio of GP. So once you identify that the series is AGP, then you'll have to get the common ratio of GP, and you'll have to multiply both sides by the common ratio of GP in a specific pattern. What is meant by that specific pattern? If I have x into y plus z, okay, so that x will be multiplied to y and it will be multiplied to z also. X into y plus x into z, known as the distributive law. But if you have x into y into z, so you can just multiply this x either with y, so you can write xy into z, or you can multiply this x to z, so you can write y into xz. Is that clear to everybody? So if I'm multiplying this r, ठीक है, टू दिस टर्म, सो किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए? ए से कि 1 से, तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई जो जीपी आपने आइडेंटिफाई किया है ना, जीपी वाले टर्म को ही इनटू आर से मल्टीप्लाई करना है बाय यूजिंग दिस लॉ. ओके, दिस इज नोन एज द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैथमेटिक्स. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो ये वाले टर्म्स है, जो जीपी वाले टर्म्स है, ये खास याद रखो. ये देखो क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं, बहुत मजेदार होते हैं जब आप सॉल्व करोगे. ये रियली फन टू सॉल्व ये क्वेश्चन होते हैं. बट आपको करना क्या है, ये पैटर्न ध्यान में रखना. अब आपने इंटू आर किया तो ये आर 1 आ जा, आर इंटू आर स्क्वायर, आर क्यूब, और एक पावर यहां बढ़ जाएगा आर रेज टू एन. एंड द थर्ड स्टेप इज स्पेशल वे सब्ट्रैक्टिंग. अब बच्चा कहेगा ये स्पेशल वे सब्ट्रैक्टिंग क्या है? देखो यहां पे सब्ट्रैक्ट कैसे करना है. जैसे 1 2 3, ये s का टर्म ऐसे रहेगा. तो अब हमने जो नया निकाला है, जो हमने मल्टीप्लाई किया है, उसके टर्म्स को यू विल हैव टू राइट फ्रॉम हियर. ठीक है, तो ये जैसे यहां पे तुमने लिखना चालू किया, तो ये यहां से चालू किया तो इसका एक टर्म आगे जाएगा. यहां पे +0 डालना और इसके पहले भी +0 डालना है. फिर वो बच्चा बोलेगा सर ऐसे क्यों कर रहे हैं? बता रहा हूं मैं ऐसे क्यों कर रहे हैं. तो देखो हमने एंड में 0 डाल दिया और स्टार्टिंग में 0 डाल दिया, इसके सारे टर्म्स लिख दिए. तो जो इसका nth टर्म है वो एंड एक आगे सरक जाएगा. अब ऐसा हमने किया क्यों? वाई आई डिड दिस? तो इसका एक रीजन है कि अगर मुझे कोई कहे कि a इंटू 1 में से a इंटू आर गया, तो व्हाट विल बी द आंसर? सो इट विल लुक लाइक a इंटू 1 माइनस आर. फिर अगले टर्म के लिए जाएंगे तो कुछ अलग सा ही आएगा. हमें कुछ ना कुछ एक ये अप्लाई करने के बाद एक फॉर्मूले की तरह लाना है. इसलिए हमने कैसे किया कि इस a प्लस डी में से, a प्लस डी इंटू आर में से a इंटू आर चला गया. So what I can do, that into r I will take common, and simply I can write a plus d minus a. Okay,
सो ये आ गया डी आर। फिर इसी तरह दूसरे टर्म में भी जाएंगे तो अगेन वी विल गेट समथिंग लाइक डी आर स्क्वायर। यहां पर भी आप सब्ट्रैक्ट करके देखो, सो दिस विल गिव यू डी आर स्क्वायर, दिस विल गिव यू डी आर, दिस विल, इसी तरह आपको टर्म्स मिलेंगे। दिस इज गोइंग टू गिव यू डी आर रेस टू एन माइनस वन माइनस डी आर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आर रेस टू एन। तो एक सर्टन पार्ट जो है it will create some formula. Look at here, it now it is forming the gp ना, gp। तो ये gp की तरह आपको कुछ ना कुछ क्रिएट करके देगा जो बाई फॉर्मूला आप सॉल्व कर सकते हैं। सवाल उठता है कि सर मुझे ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा। ओके, नो इश्यू। अब ये देखो, ये मैंने कर रखा है एक डेरिवेशन, बट इसको समझाने से पहले लेट अस डू द प्रॉब्लम। मैंने क्या कहा, एंड अभी इसके शॉर्टकट्स भी हम डिस्कस करेंगे। आई हैव द सीरीज 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस अप टू इनफाइनाइट। तो ये इंफिनिटी वाले क्वेश्चन है। करना क्या है, मल्टीप्लाइंग, ये इक्वेशन नंबर 1 है, मल्टीप्लाइंग द टर्म बाय द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। जीपी का यहाँ पे एजीपी कौन बना रहा है, 1 2 3 आर इन एपी। अब यहाँ पे क्या है, इंटू 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये जीपी बना रहा है। तो ये दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एजीपी। तो आपने जीपी का रेशियो क्या देखा, हर एक टर्म के बीच में रेशियो क्या देखा, दैट इज एक्स। तो हमने एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। फर्क क्या है कि ये जो पहला टर्म है हम यहां पे लिखेंगे 1 इंटू दिस पार्ट इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स। अब ये जो 2 है वो हम यहां पे लिखेंगे एंड x इज अगेन मल्टीप्लाइड बाई x बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, डॉट 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 इन्फिनिटी। कोई बच्चा बोले सर ये वाला टर्म क्यों नहीं लिखा, जस्ट इसके आगे आ जाएगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ आई विल डू, आई विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, जैसे भी आप कर लो। सो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, इट्स s माइनस एक्स टाइम्स ऑफ s, ये है हमने जीरो कर दिया, ये 1, 2x में से 1x गया x, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया x स्क्वायर, एंड आई विल पुट डॉट डॉट डॉट। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस स्टेप, इस स्टेप का बेनिफिट क्या हुआ, इस स्टेप का बेनिफिट ये हुआ कि चलो ठीक है, यहां तो कोई बात नहीं, हम यहां पे देखते हैं। नाउ द टर्म्स आर इन जीपी एंड दैट जीपी इज गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। सो मैंने बताया था कि जब आपको इनफाइनाइट जीपी देखे तो उसके कॉमन रेशियो को चेक कर लो। नाउ द कॉमन रेशियो इज एक्स विच इज लेस देन 1, mod x less than 1 मतलब x is lying between -1 and +1. So I'm applying the infinite GP का formula 1 upon 1 minus r. So the answer for S is the entire series is given by 1 minus x, ये नीचे आ जाएगा and that is going to be whole square 1 minus, so D will be the right answer. दिस इज द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्योंकि ये इनफाइनाइट था, बड़ा इजी था, इसलिए मैं आपको इस डेरिवेशन पे ले जाता हूं, nth टर्म वाला। ये हमने एजीपी आइडेंटिफाई किया वेयर द टर्म्स आर, आप यहां से चेक कर सकते हैं, द टर्म्स आर, द वेरी फर्स्ट टर्म्स आर, ठीक है, इन एपी। और इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड टर्म, जो हम सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी इन GP. Okay, so ये I just wrote this, say number 1, then I just multiplied by the common ratio, but यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिखा, दिस इज गोइंग टू बी, एंड मल्टीप्लाई किससे करेंगे, विद द कॉमन रेशियो, ठीक है, जैसे मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पे ये वाला टर्म है ना, वो आगे की तरफ एक चला जाएगा, इसके पहले इसका n माइनस 1 था टर्म आएगा। नाउ सब्ट्रैक्ट इट 1 माइनस 2, ठीक है, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। एंड व्हाट वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, ये इतने टर्म्स में इफ आई एम टेकिंग डी आर कॉमन, आई विल गेट द nth टर्म का जीपी, nth टर्म का जीपी। अब nth टर्म का जीपी, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम r रेज़ टू 0, 1 2 3 गोइंग टू बी n माइनस 2। Say there, if I'm counting like this 0 1 2, so in practical how many lines are there, so 3 lines are there, because I numbered the first line as 0, इसलिए 2 पे end हो रहा है, इसीलिए since it is ending at n minus 2 but started from 0, so how many terms are there,
n minus 1 terms are there. So I just applied the formula for इतने part के लिए मैंने formula apply किया. The first term, that is 1 into 1 minus r raised to n minus 1 upon 1 minus r. Last term will be written as it is. अब इसको divide कर दिया and we got the answer. Okay. तो ये nth टर्म के जीपी का. अब इतना बड़ा रिजल्ट आप इसको मेमोराइज तो नहीं कर सकते, तो यू मस्ट just think about the procedure. What I did over here, that you'll have to understood. ठीक है, एक बार ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में घुस गई तो आप आगे आराम से कर सकते हो. एंड इफ यू वांट टू प्रैक्टिकली डिराइव सम फॉर्मूला, if r is tending towards 0 or r is lying between -1 and +1, so r raised to infinity will move towards 0. तो अगर ये nth टर्म की बजाय s इंफिनिटी होता, इसको डायरेक्ट अगर मगअप कर लो तो द फॉर्मूला विल बी a अपॉन 1 माइनस आर प्लस यहां पे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, सो डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर. ये s इंफिनिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा अगर आप इसको मगअप करते हो तो. बट सिंस आई डोंट बिलीव इन मगअप, तो मैं ये जनरली कभी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करता. ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज. Okay, so let us come on a second problem. So solution, write the series s equal to, now write in terms of AP and GP. So the terms which I can say from here is 1, 3, 5, 7 are in AP, multiplied by 1 into 1, 3 into half, 5 into half का square, 7 into half का क्यूब आर इन जीपी. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 3, 5, 7 ये एपी में है, साथ में ये आ गया आपका जीपी. तो आप पहले तो सीरीज आइडेंटिफाई करो, ठीक है, कि ये एजीपी है, एजीएस है. देन व्हाट यू विल हैव टू डू, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी. जीपी का कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, हाफ डिवाइडेड बाई 1, T2 बाई T1, T3 बाई T2, T4 बाई T3. हर एक टर्म में ऐसा नहीं लग रहा है कि डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 2. यहाँ व्हाट इज द डिनोमिनेटर ओवर हियर, 1. 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल गिव यू 2. 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल गिव यू 2 स्क्वायर, ये 2 का क्यूब. सो द हाफ का रेशियो आ रहा है, सो आई जस्ट मल्टीप्लाइंग 1 बाई 2 विथ एस. सो देखो यहाँ करना क्या है, अब यहां से स्टार्ट करना है. ये वाला टर्म जो जीपी वाला टर्म है उसका कॉमन रेशियो हाफ से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू ये हाफ हो जाएगा. ये जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हुआ तो हाफ का क्यूब हो जाएगा. क्लियर टू एवरीबडी. अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो. नाउ यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस. सो 1 माइनस हाफ इंटू एस, 1 माइनस 0 इज 1, 3 माइनस 1. अभी कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, 3 इंटू हाफ माइनस 1 इंटू हाफ. सो यू हैव टू टेक द हाफ कॉमन, इंटू हाफ इज कॉमन, 3 माइनस 1. तो एक्चुअल सब्ट्रैक्शन जो होता है वो जीपी वाले टर्म, सॉरी एपी वाले टर्म का होता है. 2 इंटू हाफ, अगेन 5 माइनस 3 इज 2 इंटू हाफ का स्क्वायर. ठीक है, 7 माइनस 5 इज 2 इंटू हाफ का क्यूब. And you'll have to move towards infinity. Okay, 1 minus half is half into s. This is 1 plus half plus 1 plus, this is going to be 1. Just a minute. Now I'm cancelling out. So ये 1 तो 1 है. Then now cancel किया तो again I will get 1. 1 less power here, 1 less power here. So 1 plus 1, 1 plus 1 plus half square like this plus half का cube towards infinity. Okay, यहां से लेके यहां तक का पूरा टर्म जीपी में दिख रहा है, इनफाइनाइट जीपी where the ratio is half. So s infinity अप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा a, that is 1 upon 1 minus r, 1 plus the denominator will be half, 1 upon half, that is going to be 1 plus 2. Okay, that is going to be 3. Therefore s is equal to
2 into 3, that is equal to 6. Okay, so 6 is the right answer. Understood? चलो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया. क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे. ओके, लेट्स मूव ऑन अ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्या है, सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज. तो अब मुझे बताओ कि यहां पे क्या है. 1 4 7 10, अगेन एपी और जीपी का कॉम्बो आ रहा है. 1 into 1, 4 into 1/5, 7 into 1/5 का स्क्वायर, 10 into 1/5 का क्यूब. आई जस्ट डिड दिस. देखो ये इनफाइनाइट सीरीज है तो ये बहुत इजी होता है. ये एस को हमने कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना चालू किया, ये वाले पार्ट को. तो जस्ट जीपी का कॉमन रेशियो इज 1/5. 1 माइनस, अभी ये माइनस भी करना है इसके बाद, तो यहाँ पे 0 लिखा. 1 into 1/5, 4 into 1/5 का स्क्वायर, 7 into 1/5 का क्यूब. एंड आई पुट इनफाइनाइट टर्म्स. 1 में से 1/5 गया, दैट इज गोइंग टू बी 4/5 टाइम्स ऑफ एस. 1 माइनस 0 इज 1. 4 minus 1 is 3 into 1/5. 3 into 1/5 का स्क्वायर, 3 into 1/5 का क्यूब. एंड you'll have to move towards infinity. 4/5 times of s equal to 1 plus 3. Inside the bracket you will get 1/5. If you are taking 1/5 common also, so ठीक है, 3/5 I am taking common. Inside the bracket I will get 1 plus 1 less power, 1/5 plus 1/5 square. Okay, infinite till infinity. Just do the cross multiply. S equal to 5/4 plus 3/5 into 5/4. And then you'll have to apply the formula. The first term is A upon 1 minus R is the common ratio. So 5/4 plus 3/4, that 5 will get cancelled, and this is 1 minus 1/5, so going to be 4/5. 5 will come in numerator, that 4 will come in denominator. I'll do that into 4 to make the common denominator 4/5. Okay, 20 plus 15 divided by 16. So we are getting s equal to 20 plus 15 divided by 16. So 35/16 is the answer. So student, can you tell me, how's the question, what was the level? Now you decide what was the level. क्या आप इसको एग्जाम में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या आपको ये डिफिकल्ट लगेगा? ओके, तो अगर आपको ये सिंपल लग रहा है तो फिर हम आगे की तरफ एक बढ़ते हैं. नाउ आई एम टेकिंग दिस प्रॉब्लम. ओके, सो ये देख के समझ में आ रहा है कि द फर्स्ट टर्म इज 1 into 1, सेकेंड टर्म इज 2 into 3, next term is 3 into 3 square, next term is 4 into 3 raised to 4, and the last term is 10 into 3 raised to 9. This is the equation number 1. ये तो क्लियर हो गया. 1 2 3 4 अप टू 10 आर इन एपी. एंड जीपी में क्या हो गया, 1 3 3 स्क्वायर 3 रेस टू 4. क्योंकि ये फाइनाइट टर्म्स वाला है, nth टर्म वाला है, तो इसलिए इसमें जीपी का कॉमन रेशियो चेक करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, मल्टीप्लाइंग नहीं तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पीछे तो आपने बोला था कि जीपी का जो कॉमन रेशियो होना चाहिए दैट शुड बी इन बिटवीन -1 and 1. सो दैट इज अप्लीकेबल फॉर इनफाइनाइट टर्म्स. ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स रहेगा तब एस इन्फिनिटी लगाने के लिए आपको कॉमन रेशियो देखना है. ये तो फाइनाइट टर्म्स है, ये तो टोटल हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 1 to 10, 10 टर्म का एडिशन है. सो व्हाट आई विल डू दैट, 3 का मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, सो 3, बस यहाँ पे एक स्पेशल करना है 0, एंड यहाँ से स्टार्ट करना 1 into 3, 2 into 3 स्क्वायर, 3 into 3 का क्यू, 3 into 3 raised to 3, 4 into 3 raised to 3, 3 into 3 स्क्वायर, 4 into, यस, क्यूब आना चाहिए.
ठीक है, यहाँ थोड़ा करेक्शन था, तो 3 × 3⁴। अब क्या होगा कि जब आप यहाँ पे पहुंचोगे ना, तो क्योंकि आपने एक आगे से चालू किया है, लाइक दिस आई वांट टू टेल यू, जैसे एक बच्चे ने नंबरिंग यहाँ से चालू कर दी 1 2 3, और दूसरे बच्चे ने यहाँ से चालू की 1 2 3, तो जो इसका थर्ड नंबर है ना, वो इसके सेकेंड नंबर के नीचे आएगा। ओके, यानी कि ये जो लास्ट वाला टर्म है ना, इट विल गो समवेयर हियर, 10 × 3⁻10 वो इधर आएगा, इसके पहले एक कम, nth टर्म ये है तो n-1 टर्म ये होगा, दैट 10 विल बी रिड्यूस टू 3⁹ एंड दिस 10 विल रिड्यूस टू 9। ठीक है, ऐसे। अब 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट नहीं 30 सेकेंड्स का टाइम लेके अपने भेजे में बैठा लो कि मैंने क्या किया। Okay, so what is 1 minus 3? That is going to be minus 2s. So 1 minus 0 is 1. 2 minus 1 is 1. So यहाँ पे 3 बचेगा. Again 3 square बचेगा. 3⁻3 बचेगा. This is 3⁻3. That square will be multiplied 3⁻3. So यहाँ पर 3⁻3 बचेगा. And if we'll move till here, यहाँ पे 3⁻9 बचेगा. Last term will be what? ठीक है, -10 × 3⁻10। अब यहां से लेके यहां तक के सारे टर्म अगर आप देखो तो जीपी बना रहे विद द कॉमन रेशियो 3, एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3⁻0, तो 0 से लेके 9 10 टर्म है, तो -2s इक्वल टू द फर्स्ट टर्म इज ए, रेशियो इज मोर देन 1, सो 3⁻10 -1 अपॉन 3 - 1, okay, -10 × 3⁻10. -2s equal to 1, that is 3⁻10 -1 upon 2 minus 10 times of 3⁻10. Take the LCM, 3⁻10 -1 minus 20 × 3⁻10 divided by 2. अब ये माइनस को उधर शिफ्ट कर दो। अच्छा, पहले ये कैलकुलेशन कर दो, तो -2s बिकम -1 minus 19 into 3⁻10 डिवाइडेड बाई 2। ये माइनस शिफ्ट कर दो, देयरफॉर s इज बिकम 19 into 3⁻10 plus 1 divided by 4. So is there any answer which is matching with this? Yes, 19 B वाला है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो जीपी एजीपी किया है उसमें ये वाले पहले 3 प्रॉब्लम थे इनफाइनाइट पे, और अभी के जो प्रॉब्लम्स है ये nth टर्म वाले। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि कई बार बच्चे ना एक सीरीज, एक मेथड समझ जाता है और उसको कंटिन्यूअसली अप्लाई करते हैं, वो फिर चेक ही नहीं करते कि ये एपी में है कि जीपी में है, नहीं चेक किया, फिर बाद में 2 स्टेप के बाद उनको रियलाइज होता है कि यार ये तो कुछ अलग ही प्रॉब्लम है। जैसे इस प्रॉब्लम को अगर आप देखोगे तो इस प्रॉब्लम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्या ये एपी में है? पहला मेरा सवाल, क्या ये एपी में है? एपी में है। आप पहले पहले नंबर्स को देखो, इज इट इन एपी? ठीक है, एपी में है। जवाब क्या मिल रहा है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 4 है, यहाँ पे डिफरेंस 6 है, यहाँ पे डिफरेंस 8 है, यहाँ पे डिफरेंस 10 है। ये डिफरेंस ही अलग आ रहे हैं इनके, इसलिए एपी में नहीं है। लेकिन जो डिफरेंस का डिफरेंस है ना, वो सेम आ रहा है, तो डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस इज इन एपी। तो फिर बच्चा बोलेगा अभी क्या करना है? यू विल हैव टू डू द सेम प्रोसीजर, मल्टीप्लाइड बाई 1/7 द कॉमन रेशियो, ये 0 हो गया। 2 × 1/7, ओके, 6 × 1/7 स्क्वायर, 12 × 1/7 का क्यूब, 20 × 1/7⁴। हमने ये कर लिया। पुट डॉट 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 से नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 - 1/7, 1 - 1/7 टाइम्स ऑफ s is equal to 2, then 4 × 1/7, 6 × 1/7 का स्क्वायर, 8 × 1/7 का क्यूब, then 10 × 1/7⁴ से
टिल इंफिनिटी से नंबर 3। फिर बच्चा बोलेगा सर अब एजीपी बन रहा है, एजीएस बन रहा है, तो अभी क्या करें? करते जाओ वही, द यू हैव टू डू द सेम प्रोसीजर। ये 3 है ना, अब फोर्थ इक्वेशन, इसको अगेन 1/7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 1 माइनस 1/7, इट्स बेटर टू राइट 1 माइनस 1/7, दैट इज 6/7 यहाँ पे लिख दो, क्योंकि अब बच्चे तो हो नहीं कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगेन मल्टीप्लाइड बाई 7, इट इज गोइंग टू बी 6 इंटू 7 का स्क्वायर एस। अब अगेन आपको यहाँ पे 2 लिखना है, 2 इंटू 1/7, 4 इंटू 1/7 का स्क्वायर, 8 6 इंटू 1/7 का क्यूब, देन 8 इंटू 1/7 रेज़ टू 4। आपने ये लिखा एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। नाउ अगेन सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 6/7 माइनस 6/49 एस इक्वल टू 2 प्लस 2/7 प्लस 2/7 स्क्वायर प्लस 2/7 का क्यूब प्लस 2/7 रेज़ टू 4, एंड दैट इज गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। अब इसको ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करो, 42 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 36। So this side will be 36/49, 36/49 times of s, and अगर आप 2 को कॉमन ले लेते हो तो that will be look like 1 plus 1/7 like that. GP इनफाइनाइट GP बना देगा 1 plus 1/7। वैसे 2 को रख के भी आप कर सकते हो, इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। थोड़ा कैलकुलेशन से जिनको डर लगता है उन बच्चों के लिए मैं कॉमन लेता हूँ। 2 times of the first term upon 1 minus common ratio. Common ratio is 1/7, ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म्स है। नाउ s इक्वल टू 49/36 multiplied by 2 1 जा 2, the denominator will be 7 minus 1, that is 6/7, so the 7 will come in the numerator. ये इससे कैंसिल हुआ, but the question is asking what is 4s, so I am going to multiply by 4, 49/36 into 7/3 into 4, so 7/3 into 4, so that 4 will cancel to this, will create 9. 4s is equal to 7 into 7 square, 7 का cube, and 3 का square into 3, 3 का cube, so that is what? 7/3 का cube. Clear to everybody? Clear to everybody? Okay. So let us check the answer. 7/3 का cube. Yes, C is the right answer. Okay, let's move on the next problem. So अब मेजॉरिटी प्रॉब्लम तुमको ऐसे ही मिलेंगे कि करना क्या है, वहां पे 2 इक्वेशन में सॉल्व होता था, यहाँ पे 4 इक्वेशन में होगा। 5/6, अब मैं इसको डिस्टिंग्विश नहीं करूंगा क्योंकि अब तुम समझदार हो चुके हो, तुम्हें समझ में आ चुका है कि इसे कैसे प्रोसीड करना है मूविंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। मल्टीप्लाइड बाई 1/6, सो 0 गोइंग टू बी 1/6, 5/6 का स्क्वायर, 12/6 का क्यूब, 22/6 रेज़ टू 4, ये हो गया इंफिनिटी। नाउ 1 minus 1/6 you can do in rough, the calculation will give you 5/6 times of s. Okay, 1 plus 4/6 plus 6/6 square plus 22 15. Okay, the difference, sorry, here the difference is 4, here the difference is 7, then 10, this should be 7, 12 minus 5 is 7, 7, 10/6 का क्यूब, देन 13/6 रेज़ टू 4। अब ये 1 2 3 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई अगेन 1/6, सो ये मल्टीप्लाई हुआ तो 5/6 का स्क्वायर s 1/6
3 by 6 square, sorry, 4 by 6 square plus 7 by 6 cube plus 10 by 6 raised to 4. Moving towards infinity, say number 4. Subtract both the equations. Let's do the calculation here. 5 by 6 minus 5 by 6 का square. To make it 6 का square, multiplied numerator and denominator by 6. 30 minus 25. 30 minus 5, that is going to be 25 by 36. As 1 minus 0 is 1. 3 by 6 plus 3 by 6 square. 3 by 6 का cube. 3 by 6 raised to 4. Move towards infinity. 25 by 36 is equal to 1 plus 3. Take by 6 also common, so you will get 1 plus 1 by 6 plus 1 by 6 square towards infinity. Is that clear to everybody? I'm solving here all. So s equal to, ये multiply हो जाएगा, so it is going to be 36 by 25 plus 3 by 6 into 36 by 25, and here a is 1 upon 1 minus r. Okay, so 36 by 25 plus 6 से cancel हो गया, going to be 6. 18 by 25 into, the denominator become 6 minus 1, 5. That 6 will come in numerator, 5. Now do the into 5 into 5. So I'm damn sure that the denominator is 125. Numerator is 36 into 5. 5 6 ja 30. That 3 I will carry. 5 3 ja 15, and that 18 180, and that 18 6 ja. So that is equal to 6 8 ja 48. 4 carry kiya, and that 6 1 ja 6 4 108. 108 plus 180, 280 and 288. So the answer is 288 by 125. 288 by 125. So the answer is 288 by 125. Have you understood what I did? This is called a difference of the differences in AP. तो इसका कैसा है, ये डायरेक्ट ये आपको AGS तो नहीं देगा, डिफरेंस लेने के बाद आपको AGS मिलता है. Okay, let's come on at this problem. S equal to 7 by 5 plus 9 by 5 का square plus 13 by 5 का cube plus 19 by 5 raised to 4. अभी तो मैंने ये भी नहीं चेक किया किसमें है. ये प्रोसीजर एक बार याद हो जाए ना तो आप लगा सकते हो. यहाँ पे 0 going to be 7 by 5 का square, 9 by 5 का cube, 13 by 5 raised to 4. Going towards infinity. 1 में से 1 by 5 गया तो going to be 4 by 5 times of s. 7 by 5 plus 2 by 5 square plus 4 by 5 का cube plus then 6 by 5 raised to 4. Infinite. Okay. Now what we will do, अब पंगा यहाँ फंस रहा है. ये यहां तक का टर्म तो AGS है, ये वाला टर्म का प्रॉब्लम है. सो कैसे करें? लेट्स डू दिस. 4 by 5 times of S, 7 by 5. If I'm taking 2 by 5 का square common, inside the bracket I will get 1 plus 2 by 5 plus 3 by 5 का square, like this till infinity. अगर ये डायरेक्टली तुम्हें याद होगा, 1 plus 2x plus 3x square, the very first problem का रिजल्ट. ठीक है, लेट अस मूव ऑन फर्स्ट प्रॉब्लम. ये देखो फर्स्ट प्रॉब्लम, ये कुछ ऐसे ही था, 1 plus 2x plus 3x का स्क्वायर, और ये उसका वर्किंग था. तो अगर ये याद होगा, द रिजल्ट इज 1 upon 1 minus x का होल स्क्वायर होता है 1 upon 1 minus x. x is the common ratio. x is the common ratio. So directly we can apply that result over here. तो ये हो गया s equal to
I'm just going to multiply 7 by 5 into 5 by 4. 2 by 25 into 5 by 4 into 1 upon 1 minus common ratio 1 by 5 का square. तो s equal to 7 upon 4. 5 that 1 to 1 by 10 into the difference is 5 minus 1, that is 4 का square 16 upon 5 का square, so 25 by 16. Okay, so if I'm going to cancel it out with 5 5 2 ja 5 5 ja, so this is going to be 32. So s equal to, I'm writing here, अच्छा कैंसिल नहीं करना है बिकॉज दिस इज द आस्किंग 160s का वैल्यू क्या होगा 160s. सो ठीक है, डोंट कैंसिल दिस, इसको कैंसिल मत करो. 160 तो यहाँ पे हो ही गया. दिस इज गोइंग टू बी s इक्वल टू 7 by 4 प्लस 25 by 160. 160 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो. 160 s इक्वल टू, ये कटेगा 40 into 7 280 plus 25. So 160 is equal to 305 आएगा. The answer is 305. Now you tell me where is the problem. अभी तक कैसा लग रहा है, क्वेश्चंस कैसे लग रहा है? तो क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बहुत मजेदार है. जैसा एक हवा उड़ रहा था कि AGS काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, वैसा तो उतना डिफिकल्ट है नहीं. 2/3 प्लस 7/3 का स्क्वायर. अच्छा, आई एम नॉट चेकिंग द सीरीज कि इसका डिफरेंस AP में है कि नहीं है. अब तो क्योंकि एक ट्रिक मिल गया, और ये ट्रिक बहुत जगह काम करता है, सिर्फ AGS नहीं और जगह पे भी काम करता है जहां पे डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस कांस्टेंट हो. सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 1/3 अब यहाँ पे 0, ये 1/3, ये 2/3 स्क्वायर, ये 7/3 का क्यूब, ये 12/3 हो जाएगा. एंड दैट टूवर्ड्स इंफिनिटी. 1 minus 1/3, that is going to be 2/3s. 1 plus 1/3 plus, this is going to be 7 minus 2, 5/3 का square, then 5/3 का cube, then 5/3 raised to 4. So इतना टर्म तो छोड़ दो, बट उसके आगे GP बन रहा है इनफाइनाइट सीरीज का. So this is going to be 3 1 ja 3 plus 1 4/3, 2/3s equal to 4/3. Here I am taking 5 common. What I will get? 1/3 square plus 1/3 ka cube plus 1/3 raised to 4 till infinity. Okay, I'll do the cross multiply. So 4/3 into 3/2 plus 5 into 3/2 into E, that is 1 upon, if you want to take that by 3 square common also you can do. नहीं लेना है तो the first term is 1/9, 1/3 का square upon 1 minus 1/3. So that 3 cancel with this, 2 से ये cancel हो गया, यहाँ पे आ गया 2. So S equal to that 2 plus 15/2 multiplied by 1/9 into 2/3. ये 3 यहां से कैंसिल हो गया, तो 1/6 हो गया. या इसको इसको आगे भी फर्दर कैलकुलेशन करते हैं. 2 plus 15/2 into 1/3/2. ओके, तो ये हो गया 5 हो गया by 4. तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 8. तो S इज इक्वल टू 8 plus 5/4. 4s equal to 13. 4s equal to 13. So the answer for this is 13. Clear to everybody? एक फ्लो में आपको जाना है, और ये सारे प्रॉब्लम्स देखो. अभी ये सेम प्रॉब्लम ऐसा हमने किया है पीछे. तो लेट अस डू दैट. 2/10 plus 2/9 into 3/1 plus 2/8 into 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 3/10. चलो इस सीरीज को सॉल्व करते हैं. लेट अस सॉल्व दिस सीरीज, फिर इक्वेट कर देंगे. से S1 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय
इन आई डोंट थिंक कि ये AGP है, यहाँ तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। लेट मी चेक। ओ, ये तो प्योर GP लग रहा है, देखो ना यार, द T1 T2 T3 दैट T2:10 से चालू हो रहा है, 2:0 पे खत्म हो रहा है, तो 11 टर्म हो गया ना। So T2 by T1, if you do that T2 by T1, what you will get 2 raised to 9 into 3 upon 2 raised to 10. So that T is going to be 3 by 2. If you do that T3 by T2, T3 by T2, 2 raised to 8 into 3 का square upon 2 raised to 9 into 3. So going to be 3 upon 2. Okay. तो ये तो पूरा का पूरा GP में है, तो आई विल यूज दैट द कॉमन रेशियो इज 3/2. So therefore the first term is 2 raised to 10 upon 1 r raised to n 3 by 2 raised to 11 minus 1 upon 3 by 2 minus 1 equal to s minus 2 raised to 11. Now I'll do this calculation. So 2 raised to 10, 3 raised to 11 by 2 raised to 11 minus 1 upon 3 minus 2 upon 2 equal to s minus 2 raised to 11. This 2 will come in numerator. 2 raised to 11, 3 raised to 11 minus 2 raised to 11 upon 2 raised to 11 divided by 1. Okay, so 2 raised to 11 will be cancelled with this. My s minus 2 raised to 11, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे. s equal to 3 raised to 11. So the value of s is 3 raised to 11. Clear to everybody? अच्छा, ये सब मेंस के क्वेश्चंस हैं. आप अगर सोच रहे हो कि बड़े मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इजी है, तो बेटा अगर आपको ये इजी लग रहा है, इसका मतलब आप मेंस क्रैक कर सकते हो. यू कैन चेक इट फ्रॉम द वेबसाइट जहां पे ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं. ओके, s equal to put 1 to 20, so 1 into 2 raised to 0, sorry 2 raised to 1, 1 by 2, 2 into 1 by 2 square. ठीक है, then k is 3 into 1 by 2 का cube, and last term will be 20 into 1 by 2 raised to 20, and here put the 0. Multiplying both side by 1 by 2, so going to be 1 by 2 s 0, 1 into 1 by 2 का square, 2 into 1 by 2 का cube, then ये वाला टर्म इधर आएगा 20 into 1 by 2 raised to 21, नीचे बाई 2 से मल्टीप्लाई होता जाएगा सब. इसके पहले वाला टर्म है 19 इंटू 1 बाई 2 रेज टू 20. सब्ट्रैक्ट कर दो 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ एस, हाफ, हाफ स्क्वायर, हाफ क्यूब, हाफ रेज टू, दैट इज 1 बाई 2 रेज टू 20 माइनस 20 बाई 2 रेज टू 21. एस टिल हियर जीपी का 20 टर्म्स है, 1 से लेके 20, जीपी का 20 टर्म बन रहा है. या यू कैन टेक हाफ कॉमन, हाफ कॉमन लेके दोनों साइड से कट कर सकते हैं. पहली बात तो यहां से कट कर दिया तो एक 20 हो जाएगा, और एक हाफ कॉमन ले लेते हैं, या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे भी आप समझ सकते हो करो. मल्टीप्लाइंग बाई 2 टू एवरी टर्म, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, एंड देन 1 बाई 2 रेज टू 19. और ये जो है इंटू 2 किया तो एक पावर यहां से कम होगा, और ये 10 है ना, इंटू 2 किया, 10 इंटू 2 20 किया तो और एक, यानी 2 पावर कम होंगे, तो 10 बाई 2 रेज टू 19 हो जाएगा. s equal to the first term is 1 half raised to, sorry इसे लेस देन 1 है, 1 माइनस r half raised to 20 upon 1 minus half. Okay, minus 10 upon 2 raised to 19. Now take the LCM, ये 2 आ जाएगा, so 2 times of half 1 minus half raised to 1 minus 1 by 2 raised to 20 minus 10 into 2 raised to 19. Take 2 inside the bracket. So here it is going to be s equal to 2 minus
2 by 2 raised to 20 is nothing but 1 upon 2 raised to 19. So 1 upon 2 raised to 19 minus 10 upon 2 raised to 19. So S equal to 2 minus 11 upon 2 raised to 19. This is the answer. Is it? Yeah. तो क्या तुम लोगों को AGS समझ में आया? अभी इसका पार्ट 2 आना है. पार्ट 1 में हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन देखे. पार्ट 2 में जैसे थोड़ा बाइनोमियल थ्योरम का यूज होगा, थोड़ा पढ़ लेना बाइनोमियल थ्योरम में किस तरह के क्वेश्चन है, या फिर इन क्वेश्चन को मार्क करके बाइनोमियल थ्योरम में लेके जाना. और ये रहे आपके होमवर्क. वीडियो कर दो पॉज, ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, इसको कर लो. और जब पार्ट 2 का लेक्चर आएगा तो उसमें आपको इनके आंसर्स भी मैं दूंगा. ये जो बना है 3/16, 4/64, 2/4 न्यू लिखा गया है, ठीक है. तो बहुत सारे क्वेश्चन को एकोमोडेट करने के लिए मैंने थोड़े छोटे में लिख दिए, प्रॉपर मैथ्स यूज नहीं किया है, ठीक है. तो कहीं कहीं पर छोटी छोटी एरर्स भी आ रही है, जैसे 4/1 है यहाँ पे, 4/1, 10/4, सॉरी ये 4x है ना कि 4/1 है. 4x स्क्वायर है, 8x क्यूब है. इसे क्लियर कर लो. 10x⁴ है, थोड़े से मैथ्स एरर है. सो ये क्वेश्चन को मैं रेक्टिफाई कर देता. 2 4x 6x स्क्वायर 8x क्यूब 10x⁴. इनफैक्ट यहां पर भी वही चीजें है, ठीक है. 1 4x 7x स्क्वायर 10x क्यूब 13x⁴. यहां पर भी वही चीजें हैं. 1 नहीं, यहाँ पे ये x नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है. 1 2/3, 3/9, 4/7, 27. और सबका एडिशन निकालना है. AGP, ये AGP है, उसका AGS निकालना है. बीच में ऐसे यू प्लस डालना है और यहाँ पे nth टर्म के टर्म्स में निकालना है. nth टर्म. तो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल तो पहले ये क्वेश्चन होगा, फिर ये क्वेश्चन होगा, फिर ये क्वेश्चन होगा.